This is Marcus This is Bernstein. okay. Mm-hmm. Mr. Bernstein is 42 years old. He lives with his family in Kronberg. In 30 minutes, he um, he he is at airport in Frankfurt in 30 minutes. He is a pilot at Lufthansa. Mr. Bernstein like his job. He flies a Airbus A322. Today he flight to Frankfurt, from Frankfurt to Madrid, and from Madrid to Frankfurt, and then Frankfurt, Budapest, and Zurich. He speaks English and Spanish. Perfect. Sehr gut. Das war ja wunderbar. Okay, dann kannst du das auch auf Deutsch lesen. Can you also read it in German? अमन दोबारा बोलो सर. जर्मन में भी इसको रीड करो ताकि मुझे पता चले कि रीडिंग भी सही है कि नहीं. Okay, sir. Das ist Markus Bernstein. Herr Bernstein ist 42 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Family in Kronberg. In 30 Minuten an airport in Frankfurt. Ist pilot bei der Lufthansa. Herr Bernstein mag seinen Job. Fliegt einen Airbus A322. Heute fliegt von Frankfurt nach Madrid, von Madrid nach Frankfurt und dann Frankfurt, Budapest und Zurück. Er spricht English und Spanish. ओके सो रीडिंग के जो रूल हमने किए उसके हिसाब से अच्छा पढ़ा है आपने. नो प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस? पिलोट. Pilot, right? दिस वन Simon. Seinen. Seinen. Because after S, if any vowel is there, S becomes Z. So Seinen. And what is this? Job. Job भी कह सकते हो उसको. No problem. Job. या sehr gut. Madrid, Budapest, रीडिंग में तो सर ये लगभग क्या आएगा. Bernstein. And what is this? English. English. Perfect. English is here. 42 को क्या रीड किया तुमने? 42 को बोलेंगे सर. Pearson. नहीं, sorry. Zwei und Pearson. Zwei und Pearson. 40. Sorry, Pearson. Zwei und 40. 30 30 को 30. Dreißig. तो जब टेक्स्ट में आए तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको जर्मन में रीड करने की, है ना? हाँ, वो भी तो रीड ही करना है ना हमको. ओके, श्रुति, स्वाई, फर्स्ट रीड इट इन जर्मन. Ralf Buger ist Student an der Friedrich-Schiller Universität in Jena. Das ist in Thüringen. Ralf studiert Deutsch und interkulturelle Kommunikation. Er ist im
klar? Meaning clear है? Sir? Meaning is clear? Yes, sir. Okay. So was ist das? Sir, also. How Also studies how to read it? of Auk. Auk. CH का रूल बताया था आपको कि CH से पहले A O U I तो ख पढ़ना है इसको और अदरवाइज CH को श पढ़ना है अदरवाइज so auk auk this will be auk and what is this hmm? Thüringen perfect Thüringen H is silent Thüringen H is silent here okay on Ralf Jürger ist student S का साउंड यहाँ पे सही होगा जे नहीं होगा ना ist student on there what is this Sir, Friedrich because IE will be E Friedrich and CH is ख no sh Friedrich CH से पहले AOU तो है ही नहीं तो Friedrich Schiller and this one no tat it's not tat it's tate yeah because now it is tat but this is ye Universität in Jena yeah perfect so dann was war das Kommunikation communication but Kommunikation we will read it Semester okay Magda so Deutsch und interkulturelle Kommunikation she is studying Kulturelle interkulturelle is correct interkulturelle in German and intercultural communication this is his subject yeah a student an der Friedrich Schiller Universität in Jena he is student Sir, ऐसे दोनों तरफ मोबाइल चल रहा है तो बोला जाएगा ना Er ist im 8. Semester, he is in 8th Semester. Seine Freundin Magda Zagleska studiert auch Deutsch. His friend is also studying German. Sie ist im 4. Semester, sie ist im 4th Semester. Magda kommt aus Polen. She comes from Poland, aus Krakau. पोलैंड जर्मनी के किधर है Poland के कभी to the left of Germany. Okay. Not. So im Osten लेफ्ट राइट नहीं बोलते उसमें ईस्ट वेस्ट बोलते हैं ना हाँ so im Osten von Deutschland ja dann im 4. Semester Magda kommt aus Polen aus Krakau Ralf ist 26 Jahre alt Magda ist Magda is 23 years ja old. ja Magda speaks Polish, German, and Russian. Ralph speaks English and a little of Polish. klar richtig und jetzt wer ist dran Vikram 3 Andrea Feather aus Bern ist seit neun und 2009 2009 bei Siemens in München oder war sie
drei Jahre für Siemens Medical Department in Singapore. Sie ist Electronic, in Electronic Engineering Spezialität, Medicine Technology. Sie spricht Englisch, Französisch und ein bisschen Chinese. Sie wohnt in Erding bei München. Sie mag die Alpen. Skifahren ist ihr Hobby und ihr BMW. BMW. Andre BMW. Fender from BMW. Andre Yeah. BMW. BMW. Yes. BMW. तो BMW को भी या तो हम लोग BMW बोलेंगे या फिर तो BMW बोलेंगे इसको. जर्मन्स BMW बोलते हैं ना. Andrea Fedler from Bern is since 2009 with Siemens in Munich. Before she was working for 3 years for Siemens Medical Department in Singapore. She is electronic engineer, specialty medical technology. She speaks English, French and a little Chinese. She lives in Erding near Munich. She likes the Alpen. Ski riding is a hobby and her BMW और अपनी BMW कार चलाना वो भी उसकी हॉबी है. So what is that? How will you read this? Französisch. Z is so this is Sio. Franzio. Franzio. Jish. Französisch. Yes. Französisch. Yes. थोड़ा सा अजीब है ये बोलने में लेकिन ये सही है. Französisch. ये है मेरी. हम इसमें मेडिकल को मेडिकल पढ़ेंगे क्या? हाँ मेडिकल. तो नहीं होती है. नहीं मेडिकल डिपार्टमेंट इंग्लिश के वर्ड को एज इट इज ही. जब कोई इंग्लिश की टर्म आ जाती है तो उसको एज इट इज ही पढ़ते हैं हम लोग. तो इसको सीमेंस मेडिकल डिपार्टमेंट पढ़ेंगे. ये शॉर्ट टर्म डिपार्टमेंट भी ये इंग्लिश का ही ले रखा है पूरा का पूरा. सिंगापुर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभी जर्मन सिंगापुर भी पढ़ देते हैं वो अलग बात है. बाकी इसको कैसे पढ़ेंगे? मेडिसिन टेक्नोलॉजी मेडिसिन टेक्नोलॉजी. How will you read this one? Chinese dish. जर्मन में Chinesisch. ये तो सही बोलेगा ना सर. Chinesisch. तो एस के बाद में वोवल आ गया तो एस जी बन जाएगा. जिश. Chinesisch. Chinesisch. Yes. What is this? Mark. Okay. Horse. Du bist dran. Ja, horse. Bitte.
चलिए नेक्स्ट वाला। Fourth one, Milena Filipova. अच्छा ये फोर्थ वन नहीं हो पाया था, मैं नहीं कर पाया। आप करो, read it. Read तो करो at least. Yes sir. Milena Filipova is young rises the left at 10 Yaren in green. The is Musikgreen und kommt aus Mitra. Das ist in der Time. Sie lässt Violin und Violett Bloom Ansible der Winner starts over the winner wine Fantastisch. Wien fantastisch. Being fantastic, the start, the mention, the restaurant, the Donau, the atmosphere in Sommer, the cafes und Französisch Art, the Poite in concert. Okay. और क्या ein Konzert. देखो बिना होमवर्क के करके आओ तो कितना जोर आता है ना. Sir, can I read in English? You read first in German. Okay. Milena Filipova is Kuhn und Preises. The left side there Yaren in Wien. Right side and same. Same. Sie ist Musikerin und kommt aus Mitra. Das ist in der Slowakei. Sie spielt Violine und gehört zum Ensemble der Wiener Staatsoper. Sie findet Green fantastisch. Die Stadt, die Menschen, die Restaurants, die Donau, die Atmosphäre im Sommer, die Cafés. 20 Uhr hat sie heute ein Konzert. Concert. Concert. Yes. Now you can translate. Milena Filipova is 35. She has lived in Vienna for 10 years. Still have a doubt here. I'll tell you at the end. She is a musician and comes from Mitra. It is in Slovakia. She plays violin and belongs to the company of Leonid State Opera. She finds Vienna fantastic. The city, the people, the restaurants, the Danube, the atmosphere in summer, the cafes. Around 8 p.m. she has a concert today. Perfect. Now your doubts. Yes, sir. Sir, in English they say when you use the year, you are going to use the prefix since. But when you are saying for the past 10 years or
again. That's fear. Fear. She lives since 10 years in Vienna. Yeah. Right, so sir, that's how it has been written here. He left right lane 11 Yeah. in the She has been living since 10 years in Wien city. But when you are using in English, since year it will be given, right? For the past 10 years you use, but for the year 2009 or 2010, since you use. For German, Both are same. sir? yes, yes. For German, both are same. Okay. Yeah, because in English we see it like duration of time and point of time. Correct. Right. But here for both it is same. Same Zeit Sir, in only. English also we use since 10 years. Yeah, but we also use for. Yeah, but we use since also, like for since 10 years, since Yeah. 15 years. Yes, yes. In English also we use. Yes, we use, but she is saying something else. Means there are two Sir, things. one loud, everyone is saying und. It is und, right? Und. Yeah. Und. Yeah, perfect. Okay. So is das Ensemble will be read as ensemble, right? Ensemble. Oh. Ensemble. Yeah. Ensemble. It should be ensemble. Okay. Klar. So sollten Sie zu Hause nochmals घर पे एक बार फिर से ट्राई करना आप ये चीज एंड देन फॉर एग्जांपल स्टूडियरन कौन से टेक्स्ट में आया है यू विल हैव टू फाइंड हॉबीज zum Beispiel Skifahren sometimes you will hear Skifahren so Skifahren it is fear तो मुझे टेक्स्ट में मतलब मुझे पैराग्राफ नंबर लिखना है पैराग्राफ नंबर लिखना आपको Konzert, Oper, Polnisch, Frankfurt. So sollen Sie dann nochmals lesen. ये रीडिंग के लिए हमने किया है. Now we'll see some vocab. इसमें सारा आपका काउंटिंग वगैरह फिर से आने वाला है. शुरू में हमने किया है बट इसमें फिर से एवरीथिंग आएगा. काउंटिंग कैसे आबे से बे एकदम जैसे ही हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे काउंटिंग वगैरह सब चीज वापस से आएंगी एकदम बिगनिंग आवर हियर. उससे पहले मैं आपकी थोड़ी सी वोकैब तैयार कर लेती हूँ. मोमेंट. Lehrer ein Frage. Ich habe eine Frage, okay? क्या बोले? ये जो अभी श्रुति जी ने पढ़ा है Zoom आप ये हमने ओम जो पढ़ा है वो अराउंड था. तो उसका अराउंड मतलब हमने लिखा था कि के चारों ओर या ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होता है. टाइम के लिए होता है मतलब एग्जैक्ट टाइम फॉर फिक्स टाइम. इज फॉर Okay. फिक्स टाइम फॉर टाइम. ओके. तो अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका At. मीनिंग एट आता है ना या Yes. अराउंड आता है. एट it will be at. ओके. या अराउंड के लिए डिफरेंट होगा ऑप्शन. पर टाइम. ठीक है. मोमेंट. Danke. Bitte schon. Ich habe einige Wörter für euch. आप लोगों के लिए कुछ वोकैब निकाली है मैंने. कल हमने मैस्कुलिन के कुछ वर्ड्स लिए थे. आज हमको कुछ वोकैब करनी है फेमिनिन की.
because without vocab we can't read text. So here einmal nur gucken, एक बार केवल ध्यान से देखना है, फिर लास्ट में मैं पूछूंगा भी आपसे. All these words have the article. जर्मन में हमारे पास तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल. मैस्कुलिन वाले सारे वर्ड्स के आगे आपको डेयर दिखेगा, फेमिनिन वाले वर्ड्स के आगे आपको दी दिखेगा, एंड न्यूट्रल वाले दास दिखेगा. ये सारे वर्ड्स दी वाले हैं, मतलब फेमिनिन के वर्ड्स हैं. अगेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड, most frequently used words we must know. So the Fahrkarte is travel ticket. Fahrkarte ट्रेन की, बस की टिकट जो हम लोग लेते हैं, that is Fahrkarte. The Nachricht is news, report. Nachricht. The Schule is school. Schule. Stadt is city. Jaipur Stadt. Bengaluru Stadt. Delhi Stadt. Welt is world. पूरी दुनिया. The Welt. Gruppe is group. Jeans is jeans. Frau is lady. Die Frau. Die Hose is pants. पैंट पहनते हैं आप. Die Hose, that one. Die Mutter का मतलब मटर तो नहीं है. Mother. Yes. The Mutter is mother. The Suppe is soup. The Suppe. Dal Suppe. Curry Suppe. Suppe. Tomaten Suppe. The Firma. दाल को दाल जुपे कह के बेचते हैं ना जर्मन्स. The Firma is firm, company. Firma. Woche is weak. Jahreszeit is time. Jahreszeit का मतलब है time of the year. Jahreszeit मतलब season, winter, summer, वो Jahreszeit है यहाँ पे, ये सीजन. इंफॉर्मेशन को हम लोग जर्मन में बोलेंगे इंफॉर्मेशन. TION जहां भी आएगा हर बार वर्ड का आर्टिकल दी होगा. इसमें भी आपको कुछ हिंट मिलेंगे धीरे धीरे. जैसे आप कोई भी वर्ड के आगे लास्ट में, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई देखते हो तो उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसे वर्ड का आर्टिकल दी होगा, फेमिनिन होगा. मोस्टली, एक्सेप्शनली कोई मिल जाए अलग बात है. बाकी ज्यादातर अगर वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है तो आर्टिकल उसका दी निकलने वाला है. दी होज है, दी ग्रुप है, दी शूल है, पहले में तीन आ गए. स्टुंड है, aufgabe है, बुक है, दूसरे में भी तीन आ गए. उन शोकोलाड है, फियर. Die Sprache है, die Frage है, die Flasche, die Lampe, die Adresse, die Straße, die Gasse, die Familie. देखो कितने सारे में ई आ रहे लास्ट में. ई लास्ट में आता है तो जनरली दी रहता है आर्टिकल. ऐसे ही किसी वर्ड के लास्ट में अगर टेट आ रहा है, टेट, तो आपको हर बार उसका आर्टिकल दी मिलेगा. किसी वर्ड के आगे लास्ट में अगर IN आ रहा है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वर्ड का आर्टिकल दी मिले आपको. सो इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन. दी Aufgabe इज टास्क. ये काम तो मुझे करना है. Das ist meine Aufgabe. Stunde इज आर.
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे. So Stunde is hour. Universität is university. Universität. Lehrerin is female teacher. लास्ट में पूछूंगा आपसे. The Schokolade is chocolate. ये ऊपर का क्या मतलब है फिर अगर टुडे आज हुआ तो? ऊपर का मतलब होता है o'clock. जैसे कोई बोले 5 o'clock, so 5 ऊपर. अच्छा. o'clock है वो. 5 घंटे, अच्छा. 5 घंटे को 5 ऊपर नहीं बोल सकते. स्टूडेंट बोलना पड़ेगा. ओके. ना? Which is shown. The Schokolade is chocolate. Und die Party is party. ये पार्टी जो पार्टी करते हैं आप वही पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आएगा ये. उसके लिए तो पार्टाई अलग वर्ड आएगा. दी पेरजोन जब पढ़ेंगे इसको एस के बाद में वोवल आ रहा है ना. तो दी पेरजोन पर्सन कैन बी मेल और फीमेल बट द वर्ड विल बी फीमेल ओनली. दी कोलेगिन इज कलीग. आईएन आ गया. आईएन जिस वर्ड के लास्ट में आता है पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसका आर्टिकल फेमिनिन हो. दी antwort आंसर. दी फ्रागे मीन्स क्वेश्चन. दी tabelle is table. दी sight is time. सर टेबल का तो टिश भी होता है ना, तो दोनों वर्ड्स होते हैं टेबल के. ये वाली वो टेबल है जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूं. ये एक टेबल बना देता हूँ मैं. ओके. ये वाली टेबल. डेर दी दास दी देन दी दास दी das ist eine टेबल है. ये वाली टेबल. ओके. मतलब टैबुलर फॉर्मेट में कुछ. यस यस करेक्ट. Sprache is language. Freundin is friend. Female friend. आइन आ गया. Sight is time. ये जितने भी वर्ड यहाँ पे हैं ये समझ लो ये बेस वर्ड है. मतलब इनसे बहुत सारे वर्ड दिखेंगे आपको. जैसे साइट बोला आपने. साइट का मतलब है टाइम. अब आपको कभी कोई बोलेगा फ्री टाइम तो भी आपको दिखेगा फ्राइड साइट. उसमें भी टाइम दिखेगा. कोई बोलेगा फुल टाइम काम करना मुझे तो फॉल साइट. पार्ट टाइम करना है तो टाइल साइट. तो साइट जगह जगह दिखेगा आपको. इसलिए ये बेस वर्ड अच्छे से कर लेने हैं. इनसे आपकी मतलब मल्टीफोल्ड होने वाली है वोकैब अगर ये लर्न कर लोगे तो. सपोज किसी ने नंबर वर्ड लर्न कर लिया. नंबर वर्ड लर्न कर लिया आपने. नंबर मतलब नंबर. तो हैंडी नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, हाउस नंबर, ये सब समझ में आएंगे ना. ऐसे Musik. Musik is music. The Einladung is invitation. Zeitung is. सर ये क्वेश्चन है मेरा. जैसे antwort है इसका मतलब होता है आंसर, राइट? तो हमारे पास एक वर्ब भी तो होता है antworten. वो भी तो टू आंसर होता है, राइट? और ये क्या है? राइट. और वो क्या होता है? टू आंसर. ये देखो आपने खुद ही बता दिया जवाब. मतलब ये तो है नाउन. ये तो नाउन है और वो वर्ब है. जैसे मेरे को बोलना हो कि आई मस्ट आंसर सो इस मुस वहां पे ये तो नाउन है. मतलब जैसे मैं बोलूं तुम्हारे पास पेन है क्या? हाँ है. तुम्हारे पास सवाल का जवाब है क्या? हाँ है. राइट. तो ये नाउन है और वो वर्ब होती है. ठीक है. ऐसे ही फ्राग है क्वेश्चन. फ्रागन का मतलब है क्वेश्चन करना. एसन मतलब फूड और एसन का मतलब है टू ईट. तो वर्ब भी हो सकती है नाउन भी हो सकती है. लेकिन जब नाउन होगा तो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा और उसका कोई आर्टिकल होगा. और वर्ब को फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉन्जुगेट करते हैं. स्मॉल लिखते तो ये हैं. थोड़ा सा इजी भी लर्न हो जाएगा. लाइक हम इसका अगर वर्ब लर्न करते हैं ईएन वाला तो इसका जो नाउन है और जो वोकैबुलरी में होगा वो समहाउ रिलेटेड टू दैट नाउन. Yes, yes, correct.
Zeitung is newspaper. Zeitung. The email, same meaning is also email. The Flasche. Flasche का मतलब है बोतल. The Lampe. Lamp. Yes. The Nummer. Number. The number is number. The handy number. Mobile. Mobile number. अच्छा Number. सर इसमें एक बात बताओ, वैसे हम ए को आ पढ़ते हैं हांडी, बट इसको हम हैंडी पढ़ते हैं, तो एक्सेप्शन है। ये एक्चुअली जर्मन्स कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड ले लिया, इसको जर्मन्स इंग्लिश का वर्ड मानते हैं। इंग्लिश में तो हैंडी मोबाइल होता है, लेकिन जर्मन्स इसको जर्मन का वर्ड नहीं मानते, इसको बेचारे को एक्सेप्ट नहीं किया अभी पूरी तरीके से। हाँ मेरी बहस हो गई थी मेरे हस्बैंड से, मैंने कहा हांडी पढ़ेंगे, कहते तुझे पता ही कुछ नहीं है, इसको हैंडी पढ़ते हैं। नहीं बहस मत किया करो, सुना करो। यस सो हैंडी है ये एक्चुअली हैंडी भी एक वर्ड होता है इंग्लिश में। हाँ I guess which comes handy. Yeah. yes correct so Handy is something like you can easily hand it in your palm or something like that. correct So that's how the handy mobile or handheld mobile came into existence. yeah mistake so the address है, address is address. The Straße, Straße means road, सड़क, and the Gasse, Gasse is small road, some pagdandi kind of small street, पतली सी. गली बोल सकते हैं। Gasse, Gasse, Straße, इसको वैसे इसको गली बोलते हैं। हाँ गली, Gasse, and Autobahn, Autobahn is highway, Autobahn. The Familie, family. Und die Tochter is daughter, बेटी. एक बार वापस देखो इसमें से कौन कौन से वर्ड ऐसे लग रहे हैं जो याद होने में टाइम लगाएंगे, ऐसे लग रहे हैं क्या कोई? पूछ सकते हो फटाक से, and then I will ask you. सर नागरिक मतलब न्यूज़पेपर था। Read it again proper. ओके नागरिक Yes, perfect. फिर Nachricht is news, report. Nachricht. ये वर्ड आपको बार बार दिखने वाले हैं, हर कहीं पे दिखेंगे ये। शूले में क्या होता है? सर ये डी वोके क्या है? Woche is week. शूले। Schule is a school. Sir, what is Einladung? Einladung is invitation. Okay.30 Sekunden noch. 30 seconds और है आपके पास, आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर। जैसे आप बोल रहे हो बेस वर्ड जाएंगे, अब जैसे मैं नागरिक का एग्जांपल लूँ तो ये न्यूज़ हो गया, अगर मुझे न्यूज़पेपर लगाना है तो मैं नागरिक पेपर लगा दूंगी। इसके लिए साइटुंग वर्ड है अपने पास, साइटुंग। बेस वर्ड मेरा बोलने का मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मतलब इसके बिना आपकी दाल नहीं गलेगी। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मतलब दिन में आपको 20 बार रूबरू होना पड़ेगा, हर जगह पे कहीं भी जाओगे आप तो ये दिखेगा आपको, इसके बिना काम ही नहीं चलने वाला, ऐसे बेस वर्ड है ये। और ये सर वेल्थ का मतलब क्या था? Welt means the world, दुनिया। ओके Okay, Fetish, ready? Answer. Good done.
मुकेश Yes, sir. was ist ein Ladung? Shruti, Einladung? Invitation, sir. Invitation. बुलावा. Okay. सर ये बुंडेवाड क्या है? अब बार-बार लोग जो बुंडेवाड Wonderful. Wonderful. Wunderbar. एक बार लिखिए ना सर. Wunderbar. नहीं लिख रहे. Oh, okay. Right here, maybe. Wunderbar. अब ये जैसे कॉमन वर्ड्स हैं, मान लो किसी जर्मन ने आपको बोला वुंडरबार और आपको समझ में नहीं आया तो आपने तो फर्क ही नहीं पड़ा क्या बोला इसने. तो आप उसको डांग के कुछ तो तभी बोलोगे जब समझ में आएगा. वो देखिएगा यार मैंने पढ़ाई करी इसकी और इसकी फर्क ही नहीं पड़ा. तो ये बहुत बेस हो गया ना ऐसे. ओके क्लार. सो jetzt dann Vikram, what is Aufgabe? Task. Task. Yes. Nachricht. News or review. Welt. Word. Word. ये बहुत सारे विकल्प हाँ बहुत सारे विकल्प है करके बोल रहा था मैं. नहीं नहीं अभी वो पहला वाला था आपके लिए. नहीं जो कर रहा था. हाँ अभी कॉमन है. कोई भी आंसर देगा जो पहले देगा वो जीतेगा. अलर्ट रहो सब लोग. यार एक्साइट. Year time. Time of the year. ओके Season. सीजन्स. सीजन. यार एक्साइट. Freundin. Friend. Female friend. Flasche. Bottom. Water. Bottle. Schule. School. School. Hose. Pants. Zeit. Timing and Time. time. Zeitung. Newspaper. Newspaper. Wunderbar. Wonderful. Universität. University. University. Stunde. Hour. Correct. Frage. Question. Question. Person. Person. Familiar. Family. Family. Doctor. Meeting. Water. Daughter. Daughter. Stadt. City. City. Sprache. Language. Speak. Language. Okay. Cool. Sehr schön. Ihr habt das gelernt. हो गया ये तो. तो ऐसे vocab ये 50 के आसपास तो वर्ड होंगे. कल हमने 50 वर्ड करे थे. ऐसे आपके पास 250-500 वर्ड भी होने लग जाएंगे ना यहाँ स्टोर. तो आपको बोलने में भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सेंटेंस में यूज कर सकते हो ना. अभी जैसे मान लो अभी मेरे को बोलना और फूल आ गया दिमाग में तो फूल तो आता ही नहीं मुझे तो कैसे बोलूंगा. तो आपके पास 1500 vocab तो होनी चाहिए. तो रोज के रोज जो वर्ड आप कर रहे हो उनको अपनी कॉपी में लिखना है. जाने नहीं देना है. और अपने आप भी आपको vocab इंप्रूव करनी है तो अपने आप ही ग्रुप में डाला करो. फॉर एग्जांपल एक पर्सन ले लेगा फ्रूट्स. फ्रूट्स के नाम तो नेट पे तो सब मिलते हैं आपको. तो एक पर्सन कोई फ्रूट्स के vocab निकालेगा. एक पर्सन कोई मे बी फर्नीचर मे बी किचन आइटम्स
किचन में जो काम करते हैं, खाते पीते हैं, ग्रोसरी आइटम्स में भी, है ना, घर से रिलेटेड पंखा, टेबल, व्हाटएवर जो भी आपको दिखता है घर में, उसकी वोकैब निकाल ली। आपके रूम में क्या क्या है, ढक्कन से लेकर बोतल से लेकर जो भी आपके रूम में दिखता है आपको, उसको ऐसे करके खाली टाइम में वोकैब लिखना है 10-5 और ग्रुप में स्वाहा। सो दिस वे यू विल हेल्प आल्सो 10 या klar. Jetzt nehmen wir etwas Neues. Was denn? ये हमारी बुक है स्टार्ट ऑफ डॉइच। इसका आज लिंक शेयर करूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ऐप में आपको ऑलरेडी मिल गई क्या? स्टूडियो डी। Some 250 pages, Nusrat. Yes, yes. Yeah. Okay, good. So in our application it's already there, but किसी को नहीं मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा। तो Deutsch Gehen hören, Pizza, vielleicht Computer, टेलीफोन, बैग, ऐसे करके वर्ड जो आएंगे वो वोकैब लर्न करनी है हमको। एंड मेनी ऑफ द वर्ड्स आर क्वाइट सिमिलर टू इंग्लिश। मे बी म्यूजिक, मीनिंग ट्राई करो इसका। Music. Music. Tourist. टूरिस्टन, Tourist. टूरिस्ट। ब्यूरो इज ऑफिस, Office. ब्यूरो, दस ब्यूरो। Supermarket. या इनके सबके आप चेक करोगे कि इनका कोई आर्टिकल भी होता है क्या। तो जब भी आपको आर्टिकल देखना हो, dict.cc, ये डिक्शनरी है, dict.cc। सो Musik, Touristen, ब्यूरो, Supermarket. Supermarket. सुपरमार्केट, ई नहीं है, मार्केट वाला ई नहीं है इसमें। सो सुपरमार्केट मीनिंग वही है, सुपरमार्केट। Alpen, Alpen is Alps, पहाड़, एल्प्स पर्वत। साउथ जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में उधर एल्प्स है। अपने यहाँ पे हिमालय और राइन माइन एयरपोर्ट। तो मे बी देयर इज सम फोटो, राइन माइन एयरपोर्ट या hier vielleicht Rhein-Main Airport. Parliament, Parliament is parliament. Pizza, pizza. Kasse, kasse is cheese, cash counter. Cash है, maybe this may be cash counter or yeah here cash है। Supermarkt, die Kaufstraße, cash है। Natur, nature, nature, vielleicht hier Foto, Natur, nature। Telefon, telephone, Konzert, concert, Concert, zum Beispiel hier vielleicht ओपेरा वगैरह में होती है कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट, कंप्यूटर, Computer. रेस्टोरेंट, Restaurant. एयरबस Airport. या Airport. एयरबस, Flight. train, yes, that aeroplane, particular one, Airbus. Euro, euro is euro, jet, yes, currency है, वेरों। Opera, opera, Opera. and pilot, Pilot. pilot is pilot. So ये सारे वर्ड फोटो दिए और उससे
एसोसिएट करने के लिए बोला है. देन देयर इज ए डायलॉग. लिसनिंग पे है ये, बट इसमें आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जिश इन कोर्स फॉरस्टेलन, you introduce yourself in the course. So these people are introducing themselves. Guten Tag. Hello. Guten Tag is hello. Namaste. Yeah. Mukesh, will you read this? पूरा मालूम. Yeah. Guten Tag, ich bin Frau Schuler. Ich bin Ihr Deutschlehrerin. Deutschlehrerin. Wie ist Ihr Name? Name. Name. So guten Tag. Hello. Namaste. Ich bin Frau Schiller. My name is Madam Schiller. So Ma'am Schiller is maybe teacher. Ich bin Frau Schiller. My name is Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. I am your German teacher. Ihre का मतलब क्या है? Your. Ihre. जैसे आपको मैंने एक चीज बताई थी. Ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie and sie. इसका मतलब तो है I, you, he, it, she, we, You two, you all. you two, you all, you in it's formal, आप, and this They. is they. बट जब हम लोग possessive करेंगे my, your, his, तो इसका हो जाएगा mine. Do becomes dine. Right. Air becomes sein, as also sein, sie, ihr, wir, unser, our. This is euer, and this capital ear, and this is small ear. तो you मतलब आप, और इसका मतलब है आपका, possessive. तो यहाँ पे वो बोल रही है Guten Tag, ich bin Frau Schiller, my name is Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. Deutschlehrerin means German teacher. German teacher. Ihre का मतलब है आपकी. I am your German teacher. ये आपकी बिकॉज फेमिनिन है तो ई लग रहा है इसमें. मैस्कुलिन होता तो केवल ईयर ही होता. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. I am your German teacher. Wie ist Ihr Name? What is your name? Wie ist Ihr Name? What is your name? Hallo, mein Name ist Şemgül. Hello, my name is Şemgül. Şemgül is my name. टीचर ने पूछा तो रिप्लाई मिला Hallo, mein Name ist Şemgül. My name is Şemgül. Und woher kommen Sie? टीचर ने बोला Where do you come from? Woher? आपको डब्ल्यू वर्ड सिखाऊंगा मैं. Woher का मतलब है where from. Woher kommen Sie? Where do you come from? जवाब मिला Aus der Türkei. I come from Turkey. Aus der Türkei. From Turkey. Wie heißen Sie? What's your name? Wie means how you are called. What is your name? Ich heiße Lena Borisova. My name is Lena Borisova. This is my name. Ich komme aus Russland. I come from Russia. Ich komme aus Russland. Und wie heißen Sie? इसका क्या मतलब है? What's your name? And what's your name? इसका मतलब है टीचर क्लास में एक एक करके सबसे पूछ रही है. Und wie heißen Sie? And what's your name? Sie. What's your name? Mein Name ist Anna Sanchez. My name is Anna Sanchez. Ich komme aus Brasilien. I come from. Aus जब भी आ रहा है मतलब origin की बात करता है mostly. I am from. I am basically from. For example, I am from Rajasthan. तो मैं क्या बोलूँगा? Ich komme aus
Rajasthan. Ich komme aus Rajasthan. Properly. Correct. Aus, from, and I come from. So, ich komme aus Brazilian. I come from Brazil. आपको अगर ऐसे बोलना है, जर्मनी में कोई पूछे और आप बोलते हो I come from India, तो क्या बोलोगे? Ich komme aus English. इंग्लिश नहीं, Indian. इंडियन. Indian. इंडियन. अब कोई बोले इंग्लिश भी तो इंडियन होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन वो नेशनलिटी के लिए नहीं आता. वो तो कोई भी जनरल, कोई बोले कि ये तो इंडियन चपाती लग रही है, तो इंडियन एडजेक्टिव के तौर पे इंग्लिश आता है. कोई बोले ये पेन तो इंडियन पेन लग रहा है, इंडियन घर ऐसे होते हैं, इंडियन कपड़े ऐसे होते हैं, इंडियन लड़के हैं, कुछ इंडियन लोग रहते हैं यहाँ पे, तो एज ए एडजेक्टिव यूज करते हो तो इंग्लिश करते हैं. इंडियन मसाले, इंडियन डोसा, वहां पे इंग्लिश आएगा. बट आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया इज इंडियन. आपको ऐसे बोलना हो आई एम इंडियन, तो क्या बोलोगे? इसे आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूं. इंडियन का मतलब तो इंडिया हो गया. आपको ये बोलना हो आई एम इंडियन. इसमें इंडियन बोलने का मतलब है मैं खुद ही इंडिया हूं, तुम अकेले इंडिया नहीं हो भाई, हम भी हैं इंडिया. ओके, सो इसमें होगा इंडर और इंडरिन. मतलब इंडिया में भगवान इंद्र का नाम सुना है ना, इंद्र. तो जो भी मेल है वो सारे इंद्र है, इंद्र. और जो फीमेल है वो सारी इंद्राणी. वो नहीं, तो इंडरिन. इंडरिन मतलब फीमेल इंडियन, इंडरिन. और मेल इंडियन इंडर, तो वो इंदर याद कर सकते हो आप. सो ich komme aus Brasilien. I come from Brazil. Brazilian is Brazil. Und Sie and you और आप, ये जी का मतलब यू ही है ना, आप. तो उसने खुद का बताया पहले, I come from Brazil. und Sie और आप कहां से हो और आप कौन हो. पहले अपना नाम भी बोला उसने, आप कौन हो, आप कहां से हो. Ich bin Alfia Fedorova. My name is Alfia Fedorova. Ich komme aus Kasachstan. I come from Kazakhstan. Und wer sind Sie? और आप कौन है? Wer sind Sie? Ich bin Herr Tang. I am Mr. Tang. Ich komme aus China. I come from China. Ich komme aus China. मैं चाइना से हूँ. Ich bin Herr Tang. So basic introduction in the class. They are trying to introduce themselves. Steven जी, आपको 4 सेंटेंस बताए थे मैंने to introduce yourself. Ich heiße, ich komme aus, ich komme aus, ich wohne in, ich lerne. 4 सेंटेंस. Here your name, नाम है आपका आ जाएगा. Means your origin. Origin. Ich wohne in means where you right now live. Und ich lerne, I am learning. तो बोलो I am learning German. Ich lerne Deutsch. तो ये 4 सेंटेंस एक साथ बोलोगे तो आपका एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा. So अमन, Ich heiße Amanpreet Sehdev. Ich komme aus New Delhi. Ich wohne in München. Ich lerne Deutsch. okay, perfect, done.
Shruti, do. It is Friday. Shruti is coming out India. Indian. Is only Ich komme aus Indien. is only in München. Is learning Deutsch. Okay, perfect. Vikram. Okay, Harsh, do. Ich Aisha Ashwardhan, ich komme aus Rajasthan, ich wohne in Jaipur, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ja. राशि टफ तो नहीं लग रहा है? ओके, क्लार. ये 4 सेंटेंस का. मुकेश. इस साइज से मुकेश कुमार चौधरी इस कॉमे हाउस इन इंडियन इस वन इन जयपुर इस लंदन डॉइच इश लंदन डॉइच लर्नन तो नहीं बोल रहे हो ना? नो नो इश लर्नर. इस लंदन डॉइच इश लर्नर डॉइच. ओके, सो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया. ये इंट्रोडक्शन कहां से हो? ये आपस में ये इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं. अरे ये आप इंडियन बताइए और ये आपका राजस्थान राजस्थान भी बोल सकते हो. जैसे कोई बोले कि तुम कहां से हो, आप जर्मनी में हो तो आप बोलते हो कि आई कम फ्रॉम इंडिया. अब दिल्ली में होता हूं तो मेरे को बताना होता है आई कम फ्रॉम राजस्थान. वो तो इस बात पे डिपेंड करता है आप किन लोगों के बीच में हो. आप अकेले इंडिया से हो तो आपको बताना पड़ेगा मैं इंडिया से हूं. सारे इंडिया से हैं तो वहां पे कोई बोले मैं इंडिया से हूं तो बाकी कहेंगे अच्छा हम नहीं है क्या. वहां पे तो फिर अलग अलग स्टेट के लोग हैं तो वो अपना अपना स्टेट बताते हैं. सारे लोग राजस्थान के हैं, वहां मैं कहूं कि मैं राजस्थान से हूं तो बोलेगा अच्छा हम नहीं है क्या. तो वहां पे फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है. सारी एक डिस्ट्रिक्ट के तो अपना गांव बता सकते हो ऐसे. तो डिपेंड्स कहां पे हो आप, उस पर डिपेंड करता है. यस. तो वो एंड जी. अभी आप कहां रहते हो? वो का जवाब है आपको प्लेस बताना होता है. वेयर यू लिव. वोहर का मतलब है आप कहां से हो. सो मिस्टर ग्युल है कोई यहाँ पे, उनसे पूछा गया है ग्युल वो wohnen Sie jetzt? Where do you live now? वो wohnen Sie jetzt? Where do you live now? अभी कहाँ रहते हो? ग्युल साहब. Ich wohne in Frankfurt. I live in Frankfurt. फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ. Frau Sansish, वो wohnen Sie? मैडम Sansish, where you live? Auch in Frankfurt. Auch also means I also live in Frankfurt. Und Sie, Frau Borisova, wo wohnen Sie? Madam Borisova, where you live? In Steinbach. It's a place. इनके बाद में कोई जगह आ रही है तो मान के चलो संभावना है कि वो कोई प्लेस ही तो होगा. इन स्टाइनबाख प्लेस है. वो वोंट हेयर टांग. मिस्टर टांग कहाँ रहता है? अब देखो डायरेक्ट टांग से नहीं पूछा. टांग तो शायद क्लास में सो रहा होगा, नहीं तो ऐसे ही बोल देते कि तुम कहाँ रहते हो टांग. नाम है उसका टांग, उसकी टांग मत समझ जाना. नाम है उसका हेयर लग गया तो मिस्टर टांग. सरनेम है उसका. तो उसने बोला किसी ने बताया उसके बारे में एयर वॉन्ट इन बाड हाम्बुर्ग. ये बाड हाम्बुर्ग में रहता है. ये बाड हाम्बुर्ग. कोई स्टाइनबाख में है, कोई फ्रैंकफर्ट में रह रहा है. विस्बाडन, माइंस, रुसलहाइम नाम है ये जगह के नाम. मैप दे रखा है. वो का जवाब हमेशा इन. यस. तो क्वेश्चन है वो वॉन्ट कहां रहता है? एयर वॉन्ट इन. तो वो का जवाब है इन. और वोहर का जवाब
Aus. आउस, कहाँ से हो? आउस राजस्थान, आउस इंडियन, बेसिकली यू कम फ्रॉम आउस इन। हमने जो भी पढ़ा है उसमें से एक कोई पर्सन ऐसा था जो है तो रशिया का और अभी है स्टाइनबाख में, नाम क्या है उसका? Frau Borisova. फ्राउ बोरिशोवा, Answer. रूसलैंड और स्टाइनबाख, यहीं से पता चल जाएगा। उसने बोला स्टाइनबाख, यस। वहाँ ऊपर भी सेंटेंस था सर, ऊपर भी था। उसके ऊपर भी लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन यहाँ से ही पता चल रहा है फ्राउ बोरिशोवा, वो वोनन जी, फ्राउ बोरिशोवा आप कहाँ रहते हो? आंसर दिया हुआ है स्टाइनबाख। तो हमको इससे ही आइडिया लग गया कि ये जो स्टाइनबाख में रहती हैं उन मैडम का नाम फ्राउ बोरिशोवा है। There also is there. No sir, just Like there, I mean, over that. वो क्वेश्चन के ऊपर ही है सर, बस वो क्वेश्चन के ऊपर ही है। Question के ऊपर ही है. हाँ, क्वेश्चन के ऊपर भी है। बाकी यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है टेक्स्ट में शुरू में, इश हाइशा लेना बोरिशोवा, पूरा नाम लेना बोरिशोवा, यहाँ भी नाम दे रखा है और यहाँ पे इसको में आउस रूसलैंड, तो इससे भी पता चल रहा है कि ये बोरिशोवा है जो रसिया से है। और Frau Borisova kommt aus Russland und wohnt in Steinbach। ये हिंट दे दिया कि फ्राउ बोरिशोवा लिखना है यहाँ पे, लेकिन इसमें नहीं दिया, उसमें तो हिंट दे दिया था, इसमें नहीं दिया। आउस ब्राजीलियन इन फ्रैंकफर्ट, कौन पर्सन है जो ब्राजीलियन से, ब्राजील से है? Hannah Sanchez. आना सांसेश, Answer. ओके, और अभी रहती है फ्रैंकफर्ट में। फ्राउ सांसेश वो वोनन जी आउट इन फ्रैंकफर्ट, लेकिन हेर ड्यूल भी तो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। But he's Chinese. बट यस, ये जो सांसेश है ये फ्रैंकफर्ट में रहती हैं, ये ब्राजील की होगी। ऊपर टेक्स्ट में भी पता चल जाएगा हमको। फ्राउ सांसेश, mein Name ist Ana Sanchez, ich komme aus Brasilien, I come from Brazil. So we can tell you yes, that's correct. नेक्स्ट, अब की बार दो दो इंफॉर्मेशन फिल करनी है, इधर तो एक एक ही करनी थी, उधर आउस के चुरकाई, हु इज फ्रॉम टर्की एंड वेयर द पर्सन इज लिविंग नाउ। Şemgül, ja, mein Name ist Şemgül, ich komme aus der Türkei, I come from Turkey. Şemgül, Şemgül, नाम तो हो गया Şemgül, and where the person is living now? So we can write here, नाम है शेमग्युल, वो फ्रैंकफर्ट। पूरा टेक्स्ट पढ़ने से पता चल गया बेसिकली कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, नाम क्या है। लास्ट वन, औशीना, who was from China, so नाम on where this person is living now, so Frau or Herr, Herr Tang, okay, and where the person is living now? Hamburg. Hamburg. Bad Homburg. Bad Homburg. Homburg. Ja. Guten Tag. ich heiße, तो अपना नाम आपको बताना हो कभी भी तो तीन तरीके हैं आपके पास। ich heiße, ich bin,
सर वो भी तो होता है mein Name ist. बिल्कुल, ये तो फोर्स बता दिया आपने. mein Name ist. Ich heiße. हाँ, ये तो जैसे हम माइन वाला टेबल जो यूज करते हैं हम मस्कुलिन के लिए माइन यूज करते हैं और फेमिनिन के लिए माइना. तो अब चाहे जैसे मैं अपना नेम बताऊं तो आई एम अ फीमेल तो मैं माइना यूज करूंगी या फिर माइन ही यूज करूंगी. mein only. ओके. क्योंकि तुम बता रही हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि इसके बाद में जो वर्ड आ रहा है वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन. इसको देखते हैं, बोले कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है सर. तो ये मैस्कुलिन होता है, एक्चुअली नाम है, इसलिए mein Name ist. तो guten Tag, ich bin, wie heißen Sie? आप अपना नाम पूछ रहे हो और फिर दूसरे से बोल रहे हो कि आपका नाम क्या है. फिर दूसरा बंदा बोलेगा हेलो mein Name ist. फिर वो पूछेगा woher kommen Sie? आप कहाँ से हो? Ich komme aus Kerala, ich komme aus Bengaluru, Hyderabad. Und Sie, where do you come from? Ich komme aus Rajasthan, Jaipur. Wo wohnen Sie? Where do you live? आंसर होगा ich wohne in लालकोठी. कहाँ पे रहते हो प्लेस. und Sie and you, आप कहाँ रहते हो तो वो बंदा बोलेगा ich wohne in München. ट्राई करो इसको. श्रुति, maybe you ask someone. Okay. Vikramji, guten Tag. Ich bin Shruti. Wie heißen Sie? Hallo, mein Name ist Vikram Ganapati. Woher kommen Sie? Ja. Ich komme aus India. Und Sie? Ich komme also India, Telangana, Hyderabad. इंडिया को क्या बोलेंगे हम? Indian. इंडियन. Indian. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt, Germany, sorry, Deutschland. Und Sie? Ich wohne in München, Deutschland. Deutschland. Ja, perfect. Danke dir. Okay. Okay, next. Okay, Mukesh und Aman. Mukesh, you start. Guten Tag, ich bin wie heißen Sie? Ich bin Mukesh, तो बोलो पहले अपना नाम. हाँ. Ich bin Mukesh, wie heißen Sie? Guten Tag, ich bin Mukesh Kumar Chaudhary. Wie heißen Sie? Aman. Hello, mein Name ist Amanpreet. Woher kommen Sie? Ich komme Indien und Sie? Ich komme aus. Aus. Und ich komme aus Indien, aus New Delhi. Wo kommen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne Jaipur und Sie? Ich wohne in Jaipur. In Jaipur. Und Sie? Und Sie? Ich wohne in München. Danke. Danke. Bitte schon. Okay. Harsh. Harsh. Ich heiße Devkaran. Ich bin Devkaran und wie heißen Sie? Hallo, ich bin Harshvardhan. Woher kommen Sie? Ich komme aus
Rajasthan aus Jhunjhunu und Sie? Ich komme aus Rajasthan, aus Jaipur. फिर पूछो आगे अगला क्वेश्चन। वो wohnen Sie? Ich wohne in Jaipur an Siegerstraße. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Jaipur. In Malvinagar? Hathod. In Hathos. Okay, perfect. So this is then your introduction. Ich heiße, ich komme aus, ये फिक्स बेसिक डायलॉग्स हैं, यही बार बार आएंगे हर जगह पे, आपको लिखने वाले हैं। एबीसीडी को कैसे रीड करते हैं हम लोग, कौन बताएगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे। सर मैं ओके मुकेश। आ बे बे से दे ए एफ हाँ नहीं गे गे हा हा ई योट यॉट का एल एल एम एम एन एन ओ ओ पे पे कू कू आर एर एस एस पे पे ऊ ऊ हाउ फाउ वे वे एक्स इप्सिलॉन एक्स set. Ja, also das ist dann Buchstaben ABCD auf Deutsch. Klar. Vikram, you can read once. सर एक क्वेश्चन है पहले। अभी मैं किसी को बोलूं कि मेरा नाम विक्रम है, तो ये लोग सोचेंगे विक्रम है, लिखूंगा कुछ और बोलूंगा कुछ, तो कैसे बोलना होगा? आज सुबह ही फोन पे बात कर रहा था और मैं बोल रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था ना उसको समझ में, तो आप जब उसको विक्रम कर रहे हो तो फिर उसको ऐसे बताना पड़ेगा। स्पेलिंग, जब आपको स्पेलिंग बतानी है विक्रम की, तो वो विक्रम को तो विक्रम समझते हैं, और तो आपको स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। फाउ ई का अगर मुझे फाउ नहीं बताना है सर, मुझे बी बताना है, तो अपना इंग्लिश का बी बताना है, मगर साउंड बी बताना है, तो कैसे? हम तो विक्रम नहीं बोलते हैं ना, हम तो विक्रम बोलते हैं। नहीं तो स्पेलिंग तो बताओगे उसको, करेक्ट। स्पेलिंग बतानी पड़ेगी, ऐसे ही बताना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ, ये बताएंगे, मगर फिर वो विक्रम बोल रहा है। नहीं, उसको फिर भी विक्रम बोल रहा है, तो उसको उसका नाम आपको भी उल्टा बोल के बताना पड़ेगा। मेरे को, मैं सीमेंस में था तो मेरे को देवकरण बोलने लग गए थे वो जर्मन्स, वही ये देवकरण। मैंने कहा भाई ये तो बिगाड़ देंगे नाम, तो मैंने उनको बोला देवकरण। फिर उनको स्पेलिंग बतानी पड़ती थी मुझे, डे ए फाउ का आ एर आ एन, देवकरण देवकरण। तो देव फै बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी आदत है इसलिए, बट आप एक दो बार उनको करेक्ट करोगे कि फाउ वी, आप विक्टोर विक्टोर भी बोल सकते हो, जैसे फाउ वी विक्टोर, एक तरीका ये और हो सकता है। आप समझ रहे हो, आप एक वर्ड इनका होता है विक्टोर, तो आप इनको फाउ की बजाय आप उनको बोलो कि फाउ वी विक्टोर। ओके ओके। अच्छा, अब समझा मैं आप ये कहना चाह रहे हो।
आप ये चाह रहे हो कि वो वी को फाउ नहीं पढ़े, वह पढ़े, Correct. तो उसको बोलो कि फाउ वी विक्टोर, इसको वो विक्टोर ही बोलते हैं। ठीक है, तो उनको ये नहीं समझ आए तो ये वाला समझाओ। ठीक है, चलेगा। ओके। आ बे से दे ए एफ एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे उ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट set, yeah. So das ist dann A B C D. Then we'll take some last German names. Very common names in Germany. These are surnames. आपको बार बार दिखेंगे ये वाले नाम, तो आप लोगों से देखोगे, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे या कहीं भी बार बार, वहां की स्ट्रीट्स के नाम भी आपको ऐसे दिखेंगे। बेकर स्ट्रास है, म्यूलर स्ट्रास है, फिशर स्ट्रास है, हो सकता है अपने यहाँ भी दिखते हैं ना नामों से। So these are popular German family names. The top 10, अब the top 10 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जर्मन के हिसाब से नहीं, इंग्लिश के हिसाब से टॉप बोला है इन्होंने। So the top 10, they are Familiennamen in Deutschland und bei ihnen, so these are German family names. मेरे साथ एक बार आप रिपीट करना, म्यूलर, म्यूलर, म्यूलर भी बोलते हैं, म्यूलर, Schneider, Becker, Wagner, Schmidt, Weber, Fischer, Meyer, Schulz, Schäfer. So these are German names, popular German surnames, you can see. ना सीखे को क पढ़ते हैं। CK को क्या पढ़ते हैं जनरली? Yes. Yeah. So Meyer and Schulz दो है इसमें, यहाँ पे Schmidt und Weber, मतलब इतने पॉपुलर है, कई दो की पॉपुलरिटी सेम ही है, स्मिट और वेबर दोनों सेम रूप से पॉपुलर है। ऐसे ही मायर और शुल्स परसेंटेज निकालो तो हो सकता है कि ये लगभग बराबर निकलते होंगे, तो इसलिए उन्होंने इनको सेम उस पे रखा है। आजकल ऐसे नाम भी मिल सकते हैं वहां पे, रोड्रिग्यूज और इधर उधर से जो आए ना शरणार्थी लोग अलग अलग जगह से, मान लो आप इंडिया से चले गए तो और भी दूसरे भी मिलेंगे, बट दीज आर बेसिकली जर्मन, प्योरली जर्मन नेम्स and very popular. Our neighbor's name is Schneider. Schneider, na? Okay. Schneider. Yes. सर ये लाइन का क्या मतलब हुआ? und bei ihnen? Und bei ihnen का मतलब है आपके यहाँ पे, at your place, by का मतलब at भी होता है ना, और at का मतलब एक तरह से near you आप कह सकते हो, और आपके यहाँ, हमारे यहाँ जर्मनी में तो ये है, आपके यहाँ, अब हमारे यहाँ पे मिलते हैं शेखावत, शर्मा, ऐसे करके। आपके साउथ में ज्यादातर क्या मिलते हैं जो कॉमन, रेडी ना, ऐसे इस तरीके से। एंड दीज आर देन नेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, very popular names. These are surnames, but here you have some names. बच्चों के नाम कैसे मिलेंगे ज्यादातर? लियोन, लेओन, यूंगन का मतलब है बॉय का नाम ही है, यूंगन, और मैक्शन गर्ल्स के नाम ऐसे मिलते हैं, लेओन, लुकास, एलियास, फिन, योनास। गर्ल्स मिया,
जोफिया, जोफी, लेना, लेया, मारिया. These are common girls name. इस तरह के मिलेंगे आपको जनरली गर्ल्स नेम. एक बार आप पढ़ के बताओ इनको. Leon, Leon, Lucas, Elas, Elas, Ila, Jonas, Mia, Mia, Lufia, Lena, Lena, Maria. Mia, Maria, Maria. Maria. ओके. Sehr gut. Yoga. आज का आपको जो होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक तो आपको अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया है, आते ही आप अपना इंट्रोडक्शन बताओगे एंड 10 to 15 वर्ड्स जो आपको दिए वो वर्ड्स देखने एक बार. बाकी मे बी 10 to 15 वर्ड्स अपने आसपास में जो रूम में जो भी चीजें देखते हो आप उनके dict.cc में से निकाल के आर्टिकल बनाया. ग्रुप में शेयर करना है. आर्टिकल लिख के और ग्रुप में शेयर करना है. आज सर, करके बनाएंगे आप वो एक ही टॉपिक दे दो सबको ताकि रिपीटेड ना हो और नए वर्ड लर्न करने को सबको मिल जाए. ठीक है. सो एक क्वेश्चन ले लो. ऑब्स्ट. ऑब्स्ट मतलब फ्रूट्स. श्रुति इट्स फॉर यू. हाँ सर, okay. ओके. श्रुति ऑब्स्ट. विक्रम फॉर यू द म्यूजिक मतलब Vegetables. वेजिटेबल्स के नाम होंगे 10 to 15. देन हर्ष फॉर यू म्यूबल. म्यूबल मतलब फर्नीचर, टेबल कुर्सी जो भी है. ओके. और dann Aman, du kannst dann vielleicht Wohnzimmer. Wohnzimmer का मतलब लिविंग रूम. Big room. लिविंग रूम में तुमको इन चीजों के अलावा कुछ दिखता है. लिविंग रूम में से लेने 10-15 वर्ड्स. Okay, sir. ओके. मे बी मैट और एनीथिंग. TV, plan. यस. मुकेश Yes, sir. फॉर यू क्लाइडुंगन क्लोथ्स. क्लाइडुंगन मतलब कपड़े, शूट वगैरह, पजामा, पैंट. हाँ, क्लाइडुंगन. और राशि फॉर यू मे बी फ्रॉम किचन फ्यूशन. किचन में क्या मिलेगा? मान लो ग्लास, कप, मग, प्लेट, स्पून, इस टाइप के. सो ऐसे करके सर ग्रुप में आज शाम को डालना है, कल आने के बाद डालना है. ये ग्रुप में कभी भी डाल दो दिखते ही, क्योंकि ये तो डिफरेंट है. ठीक है. जनरली सेम चीजें देता हूँ तो फिर मैं बाद में क्लास में आने के बाद में डलवाता हूँ. बट ये तो सबके डिफरेंट है. जैसे ही कर लो आप उसमें डाल दो. सो इस तरह